Hello, good evening, everyone. Can someone please confirm if you can see my screen and am I audible? Okay, thank you all. So today in this webinar, we are going to discuss strategies based on range breakout. Okay, so we will select particular range. Okay, we will select a range of we can say range of timing, and if the high is broken, then we will initiate a buy trade, and if the low is broken, then we will initiate a buy trade in PE, that is put. Okay, so first and one more condition which will add in our strategy is we will check whenever, see, suppose if we are trading with two lots and suppose we have to book partial profit at certain amount of time. Let's say our call got traded and at 20% we want to book our partial profit, and rest one lot should be trailed till end of our day, end of the day. Okay, so we will check how to implement that, and the second leg will get executed at cost to cost. Okay, so I think we will start with this. Okay, so basically, as usual, this is the strategy info block. Here we have certain parameters like strategy name, tags, and description. So as we know, here we can add the name to our strategy, add certain tags to our strategy, and add certain description to our strategy. Okay, so basically these blocks are optional purposes. Suppose if you want to list your strategy on your market on TradeTron's marketplace, then your subscribers will know about the strategy, but with this block. And one more main thing, I am pasting this link. Okay, I'm just pasting this link in the chat box. Please find it. So basically, this is the keyword documentation. So I will explain you this documentation after this strategy. Okay. So for reference purpose, I have already pasted in chat box. So let's begin with the set. So this is from here we start our strategy, and this is the set one. Okay, as you can see here. And this block is the condition builder, and this is the position builder. So whatever conditions we are assigning over here, based on that conditions, the positions will be taken. So let's see how to add the conditions. So first we will click on add. Here we will select, let's say we want the entry time of a strategy to be 9:30. Okay, so we will select time greater than 9:30. And so I am now taking the range of first 1 hour. Okay, so that is from 9:15 to 9:45. So पहले हम यहाँ पर ORB यूज करेंगे, that is range breakout. Okay, और यहाँ पर हम हाई चेक करेंगे. So 9:15 till 9. अगर आपको 9:45 तक यानी फर्स्ट 1 आवर का चेक करना है, तो यहाँ पर आपको 9:44 पुट करना होगा. ठीक है. एंड इंस्ट्रूमेंट नेम यहाँ पर हम लिखेंगे NFO Nifty 50. So similarly check for LTP. LTP is greater than, ये ऐसे आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो. So we will check for LTP greater than high. Okay, so now what we are checking over here is that after 9:30 our condition will start getting checked. Okay, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि LTP जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ निफ्टी 50 यानी स्पॉट का जो LTP है वो 1 आवर का रेंज ब्रेकआउट के हाई के ऊपर है या नहीं है. So if the LTP is breaking the high of 1 hour candle, okay, then what we are doing over here is we will buy one lot. So in this case I am just buying two lots to show you कैसे profit partial profit booking आप कर सकते हो.
So first we will select call Nifty 50. So here it will be lots, 2 lots I'm selecting over here, and I am just adding. Okay, so you can see यहाँ पर position add हो गया है. Now what we will check is we will book the partial profit at 20%. So for that we will use repair once. In the repair once we will write LTP. Here it will come traded instrument name, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट एंट्री में ट्रेड हो चुका है, राइट, एंड वी हैव टू चेक द LTP ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. सो हियर दैट्स व्हाई ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम. तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे निफ्टी 50 सेट 1 कंडीशन नंबर 1 लेग नंबर 1. सो अब यहाँ पर हम चेक करें कि जो LTP है वो इस इंस्ट्रूमेंट का, हमारी 10% वाली कंडीशंस देखना है हमें. सो विल चेक इफ LTP ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज ग्रेटर देन. सो यहाँ पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, ये कीवर्ड हमें एंट्री प्राइस फेच करके देता है. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे निफ्टी सेम सेट नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 एंड लेग नंबर 1. सो वी आर चेकिंग इफ LTP of our call is greater than the entry price of our call into 10%. So for 10% you have to write number 1.10. So 1.10 का पर इंटरप्रिटेशन होता है 10% in TradeTron. ओके, अब जैसे ही यहाँ पर ये कॉल का 10% अचीव हो जाता है, so what we will do over here is we will sell 1 lot. क्योंकि हम पहले बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेल करेंगे. एंड क्वांटिटी यहाँ पर लॉट्स में रहेगी और वो 1 होगा क्योंकि वहां पर हमने 2 लॉट सेल किए थे. और यहाँ पर होगा FX. यहाँ पर अभी हमें स्ट्राइक फेच करनी है उस कॉल की जो हमने पहले एंट्री में सेल किया है, सॉरी बाय किया है. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, बट यहाँ पर हम यहाँ पर स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे. पहले हम यहाँ पर प्राइस सिलेक्ट कर रहे थे कंडीशन बिल्डर में, बट यहाँ पर पोजीशन बिल्डर में हम यहाँ पर जो है स्ट्राइक यूज करेंगे. स्ट्राइक ऑफ निफ्टी 50 सेट नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 एंड लेग नंबर 1. सो ये सेम रहेगा. सो ये कीवर्ड हमें वो स्ट्राइक फेच करके देगा जो हमारी एंट्री में यूज हुई है. ठीक है, सो ओवर हियर वी विल ऐड. अब एक तो हमने एक लॉट यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया. नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड लॉट? सो फॉर सेकंड लॉट व्हाट वी विल डू ओवर हियर इज वी विल ऐड. सो एज वी आर गोइंग टू सी सेट नंबर 2 एज वेल फॉर पुट. सो यहाँ पर हम 2 सेट यूज करेंगे, एक कॉल के लिए एक पुट के लिए. तो अब यहाँ पर हम कॉल के एग्जिट में लिखेंगे if net quantity of that traded instrument Nifty 50 सेट नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 लेग नंबर 1. सो अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं नेट क्वांटिटी अगर 0 है, इज इक्वल टू 0. अगर हमारी नेट क्वांटिटी जो है कॉल की अगर वो 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, ओके सॉरी नेट क्वांटिटी इक्वल टू 50 लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर हमने वहां पर हमने 2 लॉट बाई किए थे. निफ्टी का एक लॉट होता है 50 का, यानी 2 लॉट्स हुए 100 के, राइट. सो 100 में से अगर हमने एक लॉट यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर दिया रिपेयर वंस में, तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही लॉट बचना चाहिए. सो इफ नेट क्वांटिटी ऑफ कॉल इज इक्वल टू 50 एंड LTP of traded instrument Nifty 50 is less than traded instrument सेट नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 लेग नंबर 1. सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन से हम चेक कर रहे हैं
कि हमारा जो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड लॉट है उसको हम ट्रेल करेंगे। ओके, ट्रेल करेंगे डे एंड तक। या फिर हमने यहाँ पर एक और एक कंडीशन ऐड कर दी है, इफ एलटीपी उस कॉल का अगर हमारे एंट्री प्राइस के नीचे आता है तो यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहले एंट्री में यहाँ पर 2 लॉट्स ट्रेड किए, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लॉट ट्रेड किया है, इसमें से 10% पे हमने 1 लॉट बुक कर लिया। अब यहाँ पर हम एग्जिट में क्या कर रहे हैं, जो बचा हुआ 1 लॉट है उसके लिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि नेट क्वांटिटी जो है वो अगर 50 रहेगी। ओके, यहाँ पर हम इनटू मल्टीप्लायर भी ऐड कर देते हैं। सपोज अगर आप मल्टीप्लायर्स यूज करते हो तो वहां पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा रिपेयर वंस जो है वहां पर ट्रेड हो गया और 10% में प्रॉफिट बुक हो गया, तो वहां यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज कंडीशंस विल चेक फॉर कॉस्ट टू कॉस्ट। या तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो और स्टॉप लॉस की भी कंडीशन ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर ऐसे आप ग्रुप बना सकते हो और ऐसे ड्रैग करके कंडीशंस को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, और ये हमारा और रहेगा। और एग्जिट के लिए हम और एक कंडीशन यूज करेंगे, दैट इफ एलटीपी is less than traded instrument entry price into number 50। सो हमने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस की भी कंडीशन ऐड कर दी है। स्टॉप लॉस कंडीशन हमने रखी है कि जो भी हमारा एंट्री प्राइस है अगर उसका 50% ड्रॉप हो जाता है तो यहाँ पर हम टोटली एग्जिट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी 10% पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की कंडीशन है और 50% हमारी स्टॉप लॉस की कंडीशन है, और टारगेट हमने ओपन रखा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप सेट टू बना सकते हो पुट के लिए। सो यहाँ पर अगर आपको कॉपी करना है तो कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन कॉपी। ओके, अब यहाँ पर आपको पेस्ट ऑप्शन विजिबल नहीं होगा, तो जैसे ही आप नीचे जाकर यहाँ पर क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर अभी हम क्योंकि फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रिएट आएगा, इसके बाद यहाँ पर अपडेट बटन आएगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, you will see the paste option over here. So you have to click over here paste, यहाँ पे आप पेस्ट करोगे, ये बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर हम ORB का लो ट्रैक करेंगे अभी। सो अगर वो पर्टिकुलर टाइम का लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। अगेन सिमिलर NFO पुट निफ्टी, यहाँ पे लॉट्स 2 लॉट सिलेक्ट करेंगे हम पहले। सिमिलरली हम यहाँ पर रिपेयर के लिए भी कंडीशन ऐड करेंगे, जो हमने यहाँ पे कॉपी करके हम यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं कंडीशंस को। यहाँ पर बस हमें ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में सेट नंबर चेंज करना है, 2 कर देना है हमें, क्योंकि हम यहाँ पर पुट के लिए सेट 2 यूज कर रहे हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही करेंगे, सेल करेंगे 1 लॉट, और यहाँ पे हम ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो हमें स्ट्राइक फेच करके देगा। सो वी विल सिलेक्ट ओवर निफ्टी, सेट नंबर 2 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, सिंपली क्लिक ऑन ऐड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का भी कंडीशन ऐड हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल क्लिक ऑन कॉपी
और हम यहाँ पर एग्जिट ब्लॉक कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर अभी पेस्ट में हम यहाँ पर बस हमें ये चेक करना है कि जो हमारा सेट है, सेट यहाँ पर हमें 2 कर देना है क्योंकि ये पुट का सेट है। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा 2, and again here it will be 2. तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो फॉर द न्यू जॉइनीज, जो नए ज्वाइन हुए उनको पता लगे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम एग्जिट चेक कर रहे हैं। हमारी एग्जिट में 2 क्राइटेरियाज है। एक तो है 50% हम स्टॉप लॉस के पेस पे एग्जिट करेंगे दोनों लॉट्स, या फिर अगर हमारा ऑलरेडी एक लॉट पार्शियल प्रॉफिट बुक हो चुका है, यानी 10% का हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है पार्शली, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे लेग को जो है यहाँ पर दूसरे जो लॉट हमारा दूसरा लॉट बाकी है उसको हम यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशंस है। और यूनिवर्सल एग्जिट में हम यहाँ पर पीएनएल बेस्ड कंडीशंस भी रख सकते हैं। सो प्लीज नोट, पीएनएल जो कीवर्ड है ये स्ट्रेटेजी लेवल पे वर्क करता है, ये सेट लेवल पे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप जो भी कंडीशंस असाइन करते हो यूनिवर्सल एग्जिट में, दिस वर्क्स ऑन सेट लेवल, सॉरी स्ट्रेटेजी लेवल। सो यहाँ पर 1000 का प्रॉफिट, सिमिलरली यू कैन डू फॉर लॉस। सो पीएनएल लेस देन नंबर -1000। और यहाँ पर आप टाइम बेस्ड कंडीशन भी रख सकते हो। सो लेट्स से कि टाइम हम 3 बजे हमको कंप्लीट स्ट्रेटेजी को एग्जिट कर देना है। सो अब यहाँ पे ऐसे करके कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हो आपके कंडीशंस को। सो यहाँ पर 3 PM के लिए आपको 1500 लिखना होगा क्योंकि ये 24 आवर फॉर्मेट है। और याद रखें यहाँ पर आपको और सिलेक्ट करना है यूनिवर्सल एग्जिट में। सो वी विल क्लिक ऑन सबमिट, दैट्स इट। So like this, you can create range breakout strategy, okay, based on the partial profit booking. So यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे इसको सेव के लिए। So as you can see, यहाँ पर हमने ये स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी। So I will just give you a quick look of advanced settings. So ये प्राइस एग्जीक्यूशन सेटिंग को हम स्किप करेंगे क्योंकि there is already a dedicated video based on this. So आप लोग हमारे YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हो और ये एक डेफिनेट आपको एक कंप्लीट वीडियो है जो प्राइस एग्जीक्यूशन को एक्सप्लेन किया है जिसमें डिटेल में। ये है ट्रांचिंग टेक्निक। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सपोज अभी हमारे स्ट्रेटेजी में 2 लॉट्स है एंट्री में, राइट। सो सपोज अगर हमको दोनों लॉट एक साथ नहीं एंटर करना है, हमें कुछ इंटरवल के बाद एक एक लॉट एंटर करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट 50% और ये स्पेसिफाइड टाइम दैट इज 10 सेकेंड्स के बाद पहले 50% यानी हमारे 2 में से पहला एक लॉट एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे एंट्री कंडीशन पे, और ये स्पेसिफाइड टाइम यानी 10 सेकेंड्स के बाद जो रिमेनिंग 1 लॉट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो बेसिकली ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। आप स्ट्रेटेजी में आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, राइट। और ये है रीएक्टिवेट ऑन एग्जिट आफ्टर सेटिंग्स। सो प्लीज नोट ऑफ दिस, ये जो भी एडवांस सेटिंग्स है ये पूरे स्ट्रेटेजी लेवल पे वर्क करती है, ना कि सेट लेवल पे वर्क करती है, राइट। सो यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करते हो ये रिफ्लेक्ट, जो भी इसके इफेक्ट है ये स्ट्रेटेजी लेवल पे होंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर रीएक्टिवेट ऑन एग्जिट लिखा है, ये जो है ये आप सेट कर सकते हो। ये 2 मिनट्स अगर आप सेट करोगे तो ये तभी वर्क करेगा जब आपकी स्ट्रेटेजी ने यूनिवर्सल एग्जिट को ट्रिगर करके एग्जिट किया है। सपोज इफ योर स्ट्रेटेजी इज एग्जिटिंग विद सेट स्पेसिफिक एग्जिट, then the status will not change and it will be remained as live entered. जब आप आपकी स्ट्रेटेजी यूनिवर्सल एग्जिट को सेटिस्फाई करके मतलब एग्जिट होती है तो वहां पर आपके स्ट्रेटेजी का जो है स्टेटस चेंज हो जाता है एग्जिटेड, और जब आपका स्ट्रेटेजी का स्टेटस चेंज होता है एग्जिटेड तब वो ऑटोमेटिकली ये सेटिंग से रीएक्टिवेट होगा। ठीक है, सो ये है चेक कंडीशंस एवरी। So you can refer our previous videos. Actually, we have already explained you about this advanced settings in a very detailed manner. So I will just give you a brief idea. So ये check continuously block useful है
सपोज अगर एक एल्गोरिथम आपके कंडीशन को चेक करने के लिए लगभग 2 से 3 सेकंड ले रहा है, अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू स्ट्रेटेजी, ओके, इट विल वेरी डेफिनेटली. So I am taking just an hypothetical situation. Suppose if any algorithm is taking 2 to 3 seconds to check the evaluate the entire one cycle, that is from entry till universal exit. So if your check condition frequency is set to be as 1 minute, then after every 3 seconds, that is after every one cycle, it will wait for 1 minute, okay, and after that it will check for the new conditions. So suppose अगर आपकी conditions उस 1 minute में अगर satisfy होती है, भले वो entry हो, repair हो या exit हो, कोई भी condition अगर उस 1 minute में fall होती है तो वो ignore हो जाएगी, और वो 3 सेकंड के बाद ही आपका, वो एक मिनट के बाद ही आपका चेक करेगा. सो अगर कभी कभार आपने देखा होगा कि पीएनएल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, फिर भी जो है एल्गोरिथम एग्जिट नहीं करता है. सो द प्राइमरी रीजन इसके पीछे यही है कि आपका जो है यहाँ पर कंडीशन फ्रीक्वेंसी 1 मिनट होगा. सो यहाँ पर अगर आप इसको कंटिन्यूअसली करते हो, सो आफ्टर एवरी 3 seconds योर कंडीशन विल बी गेटिंग चेक्ड. सो अगर वहां पर जो आपकी चांसेस है मतलब ट्रेड्स मिस होने के या स्लिप होने के, ये कम हो जाएगी अगर आप चेक कंटिन्यूअसली सेट करते हो, राइट. सो ये कैपिटल रिक्वायर्ड ब्लॉक है. सो ये उनके लिए यूजफुल है जो अपनी स्ट्रेटेजीज को मार्केट प्लेस पे लिस्ट करवाना चाहते हैं, सो उनके सब्सक्राइबर को आइडिया मिल सके कि ये स्ट्रेटेजी को रन करने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है. नाउ दिस इज द टेक ट्रेड्स. सो एज यू कैन रीड आउट ओवर हियर, स्टार्ट कंडीशन चेक आफ्टर एक्सचेंज ओपन. So now our exchange opens at 9:15, right? So if it is set to be as 10 minutes, then after 9:25, your condition will be start getting checked. Okay. Similarly, last condition check before exchange close. So this is set to be as 10 minutes again. So now our exchange closes at 3:30. So till 3:20, your conditions will be getting checked. After 3:20, your conditions won't be get checked, okay, because here you have used the settings at 10 minutes. So you can always reset the settings as per your requirement. So this is rollover on expiry feature. So on expiry day, you can roll over your existing open positions to next week or next month expiry on this specified time, that is 3 p.m. You can change the time as per your requirement. So ये marketplace settings है. Suppose if you want to list your strategy on TradeTron's marketplace, that then you can select here public strategy to a yes, and here you have to select publish to marketplace. You can assign certain monthly fixed fee for your strategy, and you can also assign the variable fee, that is in terms of profit sharing. So here this is the invoice frequency. सपोज अगर आपको इनवॉइस कितने फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करना है, मंथली या क्वार्टरली या ईयरली, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो. सो या दैट्स इट. सो फॉर नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग ओवर यस नो एंड आई एम जस्ट अपडेटिंग इट. सो ये था रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्रिएशन का वेबिनार, एंड नाउ वी विल प्रोसीड विद दिस keyword documentation. So over here, okay, so now we have created the keyword documentation over here. So यहाँ पे आप, मैंने इसके लिंक आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है. So यहाँ पर आपको डिटेल्ड में हर एक कीवर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. So you can use, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसका सिंटेक्स भी बताया गया है, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो आपके स्ट्रेटेजीज में. ओके, सो यहाँ पर यू कैन चेक ओवर हियर कैसे आपको यूज करना है इसको. ठीक है. सो जैसे जैसे यहाँ पर जो है आपके कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड्स है. ठीक है. जैसे अभी यहाँ पर आपको टेक्निकल्स में चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो. ओके, ये आरएसआई के बेस पे अगर आपको चाहिए तो आरएसआई का सिंटेक्स कैसे हो सकता है. एसएमए के भी चाहिए तो आपका मूविंग एवरेज पे आपका कैसे हो सकता है. ओपन के लिए कैसे होगा सिंटेक्स.
high के लिए, low के लिए. So there is a detailed, we can say, documentation over here. I've already shared the link with you all in the chat section. So I will request you all to please go through this keyword documentation. It will give you a broad idea of using the platform. Okay. So if you have any queries regarding this webinar, please ask in the question and answer block. I will try to answer them out. So Raja is asking, if I want to use this strategy for list of stocks, then how to do? So it's pretty simple. You just have to do one thing. So now here, what we have done is we have selected the instrument as NFO Nifty 50, that is spot. So instead of spot, what you can select over here is you can select NSE. Okay. And here you have to click on list Nifty 50. So as you will select list Nifty 50 and click on OK. Now you can notice over here that you can see this bar over here. Okay. Before and after Nifty 50 written over here, you can see one bar. So this bar represent to be as list. जब भी आपको ये बार दिखेगा, इसका मतलब होता है कि आपने लिस्ट सिलेक्ट किया है. और जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर NFO Nifty 50 लिखा हुआ है. तो इसका मतलब होता है ये स्पॉट पे चेक करेगा. जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बार आ गया, इसका मतलब होता है ये लिस्ट पे चेक करेगा, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स पे चेक करेगा. So I hope it is clear to you now. So Shekhar is asking, how can we use value when keyword with super trend and entry after LTP cross super trend breakout candles high? So Shekhar, there is already a dedicated video with for value and keyword on our YouTube channel. I will request you to visit our YouTube channel and search for the value when. You will see that video, and in detail I have explained how to use that value and keyword. So some users are asking for the link again. I have shared the link. So please let me know if you get the link. So can you see the link now? I've again shared it. Can someone please confirm if you can see the link? Okay, thank you very much. So for your reference purpose, I will also share the link in our Telegram group. Okay, so you can find that link on Telegram group as well. So Puneet is asking, after entry, I want to exit in closing of the same candle. So Puneet, for this specific requirement of yours, you will require the custom Python code to store the low of the entry candle. Okay. Close of the entry candle. So to get the Python code done, you can click on this support chat option. You can enter your mail address and name, and you can have a chat with our con team, and you can ask for the code. Okay, we will send you the code link
strategy questionnaire link. You have to fill that questionnaire form, and once you have filled, our team will reach you for the requirement gathering. So one user is asking how to use last repaired price. So see, for this particular keyword, you have you can use it with multiple instances in multiple instances, but one particular use can be done in case of over here. Suppose if you want to exit on the last repaired price rather than our entry price, then what we can do over here is we will check over here last repaired price. Okay, here it will be Nifty 50. So what this keyword will do is suppose अभी हमने यहाँ पर 100 पे एंटर हुए थे हम. ओके, हमने 10% यानी 110 पे हमने जो है एग्जिट ले लिया पार्शियली, यानी हमने 2 लॉट एंटर हुए थे, 110 पे हमने एक लॉट एग्जिट कर दिया. अब हमें जो है एग्जिट जो है हमारी एंट्री प्राइस 100 पे नहीं करनी है. जो सेकेंड लेग के लिए हमको क्या है, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आना है, हमको जो हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हुआ था वही प्राइस पे हमको एग्जिट होना है. सो फॉर दैट व्हाट विल डू हियर, we will select here last repaired price. So हमारा last repaired price कितना है 110. So let's say अगर अभी LTP 120 चल रहा है, तो जैसे ही LTP 110 हो जाएगा आपका स्ट्रेटेजी एग्जिट हो जाएगा. So और भी काफी इंस्टेंसेस है जहां पर आप यूज कर सकते हो लास्ट रिपेयर्ड प्राइस. मैंने आपको बस एक एग्जांपल बताया. Anyway, you have the keyword documentation right now, so you can have a look around these keywords, and definitely it will give you a brief idea, detailed idea about the usage of the keywords. तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो. ओके, या यू कैन अगर आपको यहाँ पर एक एक ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सर्च कीवर्ड करके जस्ट कीवर्ड का नाम आपको एंटर करना है. ओके, एंड यू कैन सी ओवर हियर. So Praveen is asking how to do this ORB with a 930 particular strike CE. So definitely you can check over here, but for this requirement of yours, custom Python code will be required to store the CE strike value of 930. Okay, and we can use that in ORB. So you have to understand certain things के जो आपके keywords है, keywords के बारे में जब आपको कोई एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो डेफिनेटली इट विल रिक्वायर अ पाइथन कोड. ओके, so yeah, so I don't see any new questions over here. I think we are done for this webinar. So if you have any queries regarding your strategy creation or regarding the platform, or any query regarding your strategy creation, so you can ask on the support chat over here. Okay, so else you can log into our this you can mail us to on support@cratron.tech. I am dropping the mail address over here. So आप लोग यहाँ पर भी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो आपकी. So Shekhar is asking, do you have video on how to use Python code? No, there is no video as such for use of Python code, because Python code section जो है वो Tratron Con team के लिए available है, users के लिए वो access नहीं है. So you can ask the request, okay, over here support chat or on the support mail if you have any request regarding the Python code or any of your requirement. So yeah, I think we are done with this webinar. So thank you all for attending this and happy weekend. Okay, bye.